ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਅਤੇ ਜਿਆਮਿਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲੇਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 70, ਇਹ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਆਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੇ 3900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਲੇ ਮਤਲਬ ਬੈਟ ਅਤੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੇਂਦਾਂ 1300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਅਤੇ ਜਿਆਮਿਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲੇਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 3 ਬੈਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਲਾ ਅਤੇ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਇੱਕ ਬੈਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ X ਰੁਪਏ ਲੈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ Y ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੇ 3 ਬੱਲੇ ਅਤੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਲਾ X ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 3 ਬੱਲੇ 3X ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Y ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ 6Y ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3X + 6Y = 3900। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, 1 ਤੀਆ 3 ਦੂਣੀ 6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ 3 ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਤੀਆ 30, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾਂਕ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ 3 ਦੂਣੀ 6, ਇੱਥੇ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ 3900। ਹੁਣ 3 ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਧਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। 3900/3, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 3900 ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 1300 ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤੀਆ 39 ਅਤੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, X + 2Y = 1300। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਲਾ ਅਤੇ 3 ਗੇਂਦਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ X ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਲਾ X ਅਤੇ ਪਲੱਸ 3 ਗੇਂਦਾਂ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਹੈ Y ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 3Y ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬਰਾਬਰ 1300। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ X + 3Y = 1300 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 2, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਲੇਖ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ X + 2Y = 1300। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ X ਦੀ ਕੀਮਤ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ X ਦੀ ਕੀਮਤ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 + 2Y = 1300। 0 + 2Y 2Y ਆ ਗਿਆ, 2Y = 1300, 2Y = 1300। ਹੁਣ 2Y ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ Y, Y ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 1300 ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/2 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 1300 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 2 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 650। ਸੋ Y ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ 650। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ। X ਨੂੰ ਭਰਿਆ 0 ਅਤੇ Y ਆ ਗਿਆ 650। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ X ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1300।
फिर x की जगह तो 1300 प्लस 2y बराबर 1300 बराबर 1300। सो हुण फिर 1300 प्लस का उधर जाके माइनस होएगा, 1300 चो 1300 कढ़िया 0। फिर हुण जिहड़ा 2y बराबर 0 आया साडे कोल, ते 2 इधर गुणा हो रहा है, उधर जाके बटा होएगा, तो 0 बटा 2 सानूं पता है 0 हुंदा है। सो साडे कोल x 1300 भरन ते x नूं 1300 भरिया तो y जिहड़ा है वो साडे कोल 0 आ गया। ये साडे कोल दूजे मुल आ गए। फिर x बराबर 300 भरिया, साडी अपनी मर्जी है, असीं जो मर्जी भर सकते हाँ, पर ज़्यादातर याद रखना वो कीमत भरी जाती है जिस नाल मुल पूरे पूरे आण, यानी कि बटियां विच जां पॉइंट विच साडा उत्तर ना जाए, कोशिश करनी है असीं। सो असीं x नूं 300 भरिया, हुण 300 उधर जाके माइनस होएगा, 1300 विचों 1000 आ जाएगा, 2 ते y गुणा हुंदे हन, 2 उधर जाके बटा होएगा, भाग करेगा 1000 नूं, ते ये साडा आ जाएगा 500। सो साडे कोल जे x बराबर 300 सी ते y बराबर 500 आ गया। ये असीं हुण बिंदु जिहड़े आ वो ग्राफ पेपर दे उपर लवांगे। पहला बिंदु असीं लवांगे 0 650, दूजा बिंदु लवांगे 1300 0, तीजा बिंदु लवांगे 300 500। इसे तरह ही हुण दूजी समीकरण वाल आंदे हां। दूजी समीकरण साडे कोल सी x प्लस 3y बराबर 1300। इस विच भी असीं की करांगे, सब तो पहलां असीं x का मुल भरिया 1300, 1300 उधर जाके माइनस हो गया 0। फिर 3y बराबर 0 तो y का मुल 0 आएगा, क्योंकि जे 3y 0 है तो y की आएगा 3 गुणा होंदा है, उधर जाके 3 बटा हो जाएगा, तो 0 बटा 3 0। इस करके साडा पहला जिहड़ा मुल आ गया x का 1300 तो y आ गया 0। फिर असीं x नूं 400 भरिया, 400 उधर जाके माइनस होया, 1300 विचों 400 गया 900, तो 3 गुणा हुंदा है बटा हो जाना, तो इनू जदों असीं वंडिया 3 के पहाड़ से कट्टिया तो साढ़े को आ गया 3 3 9 तो नाल 2 0 300। सो साढ़े को दूजा मुल आ गया x बराबर 400 भरन दे y बराबर 300। इस तरह ही हुण असीं x नूं -200 भरिया, देखो असीं माइनस वाली कीमत भी लै सकते हैं, प्लस वाली भी लै सकते हैं, ये हुण माइनस वाली लई है, साडी अपनी मर्जी है। तो x नूं असीं -200 भरिया, -200 उधर आके प्लस हो गया, 1300 विच 200 प्लस होया 1500, 3y नाल गुणा हो रहा है, ये उधर जाके बटा होएगा, तो फिर इनू ये कट्टेगा, 1500 नूं विच रख के 3 ते भाग दे के देखांगे असीं 500 आएगा। सो साडे कोल मुल आ गए -200 ते 500। हुण इत्थे साडे कोल कीमतां बन गईयां 1300 0। जिहड़े अंक जिहड़े असीं बिंदु ग्राफ पेपर ते लैणे हन वो साडे कोल तैयार हो गए हन। ये बिंदु असीं ग्राफ पेपर ते लवांगे। सो असीं अगे देखदे हां ग्राफ पेपर। थोड़ा जिहा ये ग्राफ पेपर धुंधला है, पर मैं कोशिश करांगा तुहानूं चंगी तरह समझाउण दी। तुसीं जदों ग्राफ पेपर बनाओगे जे कोई प्रॉब्लम आवे तो मैनूं दस देना। देखो सब तो पहलां असीं ग्राफ पेपर के सेंटर विच 9वीं च कीता सी कि इधर असीं x सज्जे पासे x ते खब्बे पासे x डैश लैंदे हां, इनूं असीं x धुरा बोलदे हां। इस तरह ही एक फिर सेंटर विच जिहड़ी खड़वी लाइन है सेंटर विचों उपर असीं y ते थल्ले असीं y डैश लैंदे हां, ते इस नूं असीं y धुरा बोलदे हां। ये दोनों धुरे जिथे कटते हैं वो मूल बिंदु हुंदा है, यानी कि 0 0। सो हुण इहदे विच साडे कोल जिहड़ियां कीमतां सी वो वड्डियां सी, वड्डियां मतलब भी कीमत साडे कोल 1300 भी है। सो असीं इस करके इत्थे की लवांगे 200 400 600 800 1000 1200 1400, यानी कि असीं 200 200 का फर्क दे नाल बिंदु लए हन। इस तरह ही उपर भी 200 200 के नाल, तो खब्बे पासे तुहानूं पता है -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400। इस तरह ही नीचे वाले पासे भी माइनस, पर याद रखना सारे पासे इक्को स्केल विच लैणे हन, यानी कि 200 200 विच। हुण असीं देखदे हां कि साडा पहला बिंदु जिहड़ा सी वो सी 0 650। पहला बिंदु सी 0 650, यानी कि x 0 तो y 650, x 0 y 650। हम देखो x 0 तो इत्थे ही रहेगा, तो y 650 असीं उपर वाले पासे जावांगे क्योंकि प्लस का है। फिर 200 400 600 इत्थे आ गया 800, 600 तो 800 के विचकार आएगा 700। हुण 700 तो 600 के विचकार आएगा 650। सो साडा आ जिहड़ा बिंदु है ये आ गया x बराबर 0 तो y बराबर 650, 0 650। ओके, ये पहला बिंदु आ गया। इस तरह ही असीं दूजा बिंदु देखते हैं 1300 0। दूजा बिंदु है 1300 0, यानी कि x 1300 तो y 0। हुण देखो x 1300 प्लस का इधरले पासे जावांगे सज्जे पासे 200 400 600 800 1000 फिर 1200 फिर 1400। 1400 तो 1200 के सेंटर में आएगा 1300, तो y नूं 0 लेना है, ना असीं उपर जाना ना असीं थल्ले जाना है। सो ये साडा बिंदु आ गया 1300 0।
वैसे तो 2 बिंदुओं नाल भी ग्राफ बन सकता है, सो पर असी फिर भी पूरा ग्राफ बनाने लिए तीजा बिंदु भी लिया है 300 500। तीजा बिंदु है 300 500। एक्स की कीमत असीं 300 लवांगे तो वाई नूं असीं 500। सो असीं इहदे विच हुण बिंदु लैंदे हां एक्स 300। देखो एक्स फिर सज्जे पासे रहना है प्लस का 200 400। 200 ते 400 के विचकार आएगा 300 तो वाई कितना लेना है 500। सो असी आ जिहड़ा साडे कोल 300 है इत्थों असी उपर जावांगे जिथे साडी वाई 500 आएगी। देखो वाई 500 आ देखो 400 600 ये सेंटर में 500। सो इधरों असी लिया 300 तो इधरों लिया 500। ये साडा जिहड़ा बिंदु आ गया 300 500। हुण असी फुट्टा रख के आ 3 बिंदु आपस में मिला देवांगे तो ये साडे कोल पहला जिहड़ा समीकरण सी पहली समीकरण सी उहदा ग्राफ जिहड़ा वो आ जाएगा। हुण इस तरह ही असी दूजी समीकरण का ग्राफ बनावांगे। उहदा बिंदु है 1300 0 एक्स 1300 सनी फिर सज्जे पासे असी जावांगे 200 400 600 800 1000 1200 1400। 1400 तो सेंटर के विचकार 1300 तो वाई 0 लेना है। सो असी ना उपर जाना ना थले जाना। यही बिंदु फिर दोबारा एक बार आ गया 1300 0। फिर हुण अगला बिंदु जिहड़ा है साडे कोल वो है 400 300। नैक्सट 400 लेना है। सज्जे पासे असी 400 लवांगे 200 400 ओके तो वाई 300 300 लैन लई हुण साडा इत्थे है 200 इत्थे है 400 200 तो 400 के विचकार इत्थे आएगा साडे कोल 300। सो ये बिंदु साडा आ गया तो 400 300। फिर अगला बिंदु है -200 500 एक्स -200। देखो हुण असी माइनस वाले पासे जाना है। एक्स माइनस इधर है साडे कोल खब्बे पासे एक्स -200 देखो 0 -200 तो वाई 500 उपर जावांगे प्लस का 200 400 600 600 तो 400 के विचकार आएगा 500। सो साडा इत्थे बिंदु आ गया -200 500। हुण 1 2 ते 3 ये भी असी 3 बिंदु मिला दिते फुट्टे दे नाल। ये दोनों लाइनां जिहड़ियां हन वो एक दूजे नूं बिंदु 15 1300 0 ते कटदियां हन। बिंदु 1300 0 ते कटदियां हन। तो इहदा हुण की मतलब होया फिर इहदा मतलब होया कि जिहड़ा उस नूं बल्ला सी जिहड़ा उन्हें मन्निया सी एक्स रुपए का वो आ गया जी 1300 रुपए का ते जिहड़ी गेंद सी वो आई 0 रुपए की। ओके हुण असल में तो सानू पता है कोई चीज़ सानू फ्री नहीं मिलती पर इस सवाल के अकॉर्डिंग जिहड़ा बल्ले का मुल है वो 1300 है तो जिहड़ा गेंद का मुल है वो 0 है। सो असी सवाल के एंड ते लिख देंगे एक बल्ले का मुल बराबर 1300 रुपए एक गेंद का मुल बराबर 0 रुपए तो ये साडा आंसर होवेगा। थैंक यू। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 है साडे कोल किसी दिन 2 किलोग्राम सेब ਅਤੇ 1 किलोग्राम अंगूर का मुल 160 रुपए सी। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब ਅਤੇ 2 किलोग्राम अंगूर का मुल 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितक ਅਤੇ ज्यामिति रूप में दर्शाओ। असी ये जिहड़ी कंडीशन सानू दित्तियां हन उन्हां नूं बीजगणितक एक्स वाई के रूप ते ज्यामिति यानी कि ग्राफ के रूप में दर्शाना है। देखो किसी दिन 2 किलोग्राम सेब तो 1 किलोग्राम अंगूर जे किसी ने खरीदे तो उन्हें 160 रुपए दिते। हुण इत्थे सानू ये नहीं पता कि 1 किलोग्राम सेब किन्ने दे हन ते 1 किलोग्राम अंगूर किन्ने दे हन। सो असी मन लेंदे हाँ 1 किलोग्राम सेब जिहड़े वो एक्स रुपए दे हन ते 1 किलोग्राम अंगूर जिहड़े आ वो वाई रुपए दे हन। सो 2 किलोग्राम सेब 2 एक्स दे हो गए। जे 1 किलोग्राम चीज़ सानू एक्स दी मिलती है तो 2 किलोग्राम 2 एक्स की मिलेगी। इस तरह 1 किलोग्राम अंगूर का मुल मान लिया असी वाई रुपए तो उन्हें 1 किलोग्राम अंगूर ही खरीदे हैं इस करके 1 वाई हो गया तो उन्हें दुकानदार को दिते 160 रुपए। सो 2x प्लस 1 वाई बराबर 160। इस तरह ही 4 किलोग्राम सेब तो 2 किलोग्राम अंगूर जोड़े वो 300 रुपए। हुण 1 किलोग्राम सेब हैं एक्स दे 4 किलोग्राम हो गए 4x दे 1 किलोग्राम अंगूर हैं वाई दे तो 2 किलोग्राम अंगूर जिहड़े वो हो गए 2 वाई दे। सो इत्थे जिहड़ी साडे को दूजी शर्त के अनुसार समीकरण बन गई वो है 4 किलोग्राम सेब 4x दे 2 किलोग्राम अंगूर 2 वाई दे तो उन्हें कुल रुपए दिते 300। सो साडे को 2 समीकरण तैयार हो गई।
पहली समीकरण है 2x + 1y बराबर 160, 4x + 2y बराबर 300। ओके, हुण असीं इन्हां दोनों समीकरणों नूं बीजगणितक रूप विच व्यक्त कर दिता है। ये साडे कोल बीजगणितक रूप जिहड़ा वो बन गया है। हुण असीं इस नूं ग्राफ पेपर ते दर्शावांगे। साडी पहली समीकरण सी 2x + y बराबर 160। इस विच जे असीं x का मुल 50 भर दईए, 50, तो फिर 50 दूनी 100 हो गया, प्लस y बराबर 160, 100 उधर जाके माइनस हो गया, 60 आ गया। इस करके y का मुल आ गया 60। 100 जे असी x का मुल 50 लिया तो y आ गया 60। इस तरह जे असी x नूं 60 भरिया तो 60 दूनी 120 बन गया, 120 उधर जाके माइनस होएगा, 160 विच 120 माइनस किते तो 40 आ गया। सो y का मुल आ गया 40 जो x का मुल भरिया 60। इस तरह ही हुण x जिहड़ा 70 भरिया तो फिर x की जगह पर जो 70 भरांगे तो 2 ब्रैकेट में 70 आएगा, 70 दूना 140, 140 उधर आके माइनस हो गया तो फिर साढ़े को y का मुल आ गया 20। इस तरह x 70 तो y 20। सो साढ़े को 3 कीमत आ गई। पहली कीमत आ गई साढ़े को 50 60, दूजी आ गई साढ़े को 60 40, तो तीजी आ गई साढ़े को 70 20। हुण इस तरह दूजी समीकरण जी साडी बनी सी, दूजी जी बीजगणितक समीकरण बनी सी, वो सी 4x + 2y बराबर 300। हुण इस विच भी x बराबर पहला 70 भरिया, जे असीं x बराबर 70 भरिया तो 70 चौका 280, 280 उधर आके माइनस होया, 300 विचों 280 नूं माइनस किया 20, तो 2 गुणा हुंदा है उधर आके बटा हो गया, 20 नूं 2 नाल भाग के 10 आ गया। सो पहला मुल आ गया साडा 70 ते 10। इस तरह ही x बराबर 50, जदों असीं x की जगह पर 50 भरिया तो 50 चौका 200, 200 उधर आके माइनस होया, 300 विचों 200 कटिया 100, तो 2y, y बराबर आ गया 100 बटा 2, तो जो असीं इहनूं कट्टिया तो साडे को आ गया 50। फिर असीं x बराबर 40 भर दिता। देखो ये कीमत साडी मर्जी है, असीं जो मर्जी भर सकते हाँ, पर कीमत वो भरनी है जिन्हों भरन ते y का मुल पूरा पूरा निकले, बटे जां दशमलव विच ना जावे। x बराबर 40 भरिया, 40 चौका 160, 160 नूं उधर के माइनस किया, 300 विच 160 माइनस किया 140, 2y आ गया 140, तो फिर y का मुल आ गया 2 गुणा हुंदा पिया सी उधर के बटा हो गया, तो 70 दूने 140, इस करके y का मुल आ गया 70। हुण जदों असीं x बराबर 50 भरिया सी तो y 50 आया सी, जदों x नूं 40 भरिया तो y 70 आया। सो इत्थे साडे कोल जिहड़े पॉइंट आ गए वो साडे कोल आ गए 70 10, 50 50 तो 40 70। हुण असीं ये बिंदु जिहड़े आ ग्राफ पेपर ते लवांगे। ग्राफ पेपर ते एक लेटवीं रेखा हुंदी है जिस नूं असीं x धुरा बोलते हाँ, ये सज्जे पासे x तो खब्बे पासे x डैश लिया जाता है। फिर एक खड़वी रेखा हुंदी है जिस नूं असीं y धुरा बोलते हाँ, ये उपरले पासे y तो थल्ले वाले पासे y डैश लिया जाता है। ये उपर असीं y माइनस दियां कीमतां लैंदे हाँ, इधर x माइनस दियां लैंदे हाँ, उपर y प्लस दियां तो सज्जे पासे x प्लस दियां। सो हुण असीं ये जिहड़ा साडा है ये मूल बिंदु है 0। फिर हुण असीं इहदे सज्जे पासे देखो साडे कोल बिंदु वध तों वध सारे ही 70 70 हैं, है ना, 70 वध तों वध कीमत 70 है इन्हां विच। सो असीं की करते हैं कि सज्जे पासे 10 20 30 40 50 60 70, उपरले पासे भी 10 20 30 40 50 60 70, खब्बे पासे भी तो थल्ले वाले पासे भी, खब्बे पासे माइनस विच लवांगे, थल्ले पासे भी माइनस विच लवांगे। सो असी पहला बिंदु लैंदे हाँ 50 60, x बराबर 50, सज्जे पासे x नूं 50 तक जग लैके जाना है, 10 20 30 40 50, तो y बराबर कितना लेना है 60, इत्थों ही उपर नूं जाना है 10 20 30 40 50 60। सो साडा आ जिहड़ा बिंदु है ये आ गया 50 60। इस तरह 60 40, x नूं 60 लिया तो y नूं 40, ये बिंदु जिहड़ा साडे कोल आ गया 60 40। इस तरह 70 20, x नूं हुण असीं 70 लिया, x नूं 70 लिया, जो x 70 लिया तो y जिहड़ा असीं लेना है 20, तो उपर जावांगे तो 20 तक। ये साडे कोल 3 बिंदु मिलाउण ते पहली जिहड़ी है समीकरण उहदा ग्राफ तैयार हो गया। इस तरह दूजी समीकरण 70 10, x नूं असीं 70 लिया तो y नूं 10, ये पहला बिंदु आ गया। फिर 50 50, x 50 तो y भी 50, हुण x नूं 50 10 20 30 40 50, तो y भी 50 उपर नूं 10 20 30 40 50। ओके, ये बिंदु जिहड़ा साडा है वो 50 50 आ गया। फिर अगला बिंदु है 40 70, x की कीमत रही 10 20 30 40,
तो फिर उपर नूं असीं 70 लेना 10 20 30 40 50 60 70 सो आ बिंदु साडा आ गया 40 70। ये तीन बिंदुओं मिला के साडे कोल दूजी समीकरण का ग्राफ बन जाता है। हुण इन्हां सवालों में सानूं यही पूछा गया सी कि इन्हां नूं बीज गणितक रूप में लिखो तो अलेखी रूप में लिखो। सो ये साडे सवाल इत्थों तक सी। मैं पिछले सवाल में भी तुहानूं हल बारे दस्सिया एक्स का मुल कितना वाई का मुल कितना, वो सानूं पता करने की जरूरत नहीं सी क्योंकि सानूं इन्हें समीकरण का हल नहीं पूछा सी। ओके, तो इस तरह ये भी सानूं इन्हें समीकरण का हल नहीं पूछा है, इस करके असीं ये अलेखी रूप इत्थों तक ही रहन देवांगे। परंतु ये याद रखना कि दोनों लाइनां जिहड़ियां समांतर आ रही हैं, दोनों लाइनां एक दूजे को कभी भी नहीं कटदियां। सो इस ग्राफ का जिहड़ा है कोई हल नहीं है, परंतु पिछले का एक हल सी क्योंकि दोनों एक बिंदु ते कटदे सी 1300 ते, इस करके उहदा असीं हल कढ सकदे सी। पर इहदे विच दोनों लाइनां जिहड़ियां समांतर आ रही हैं। सो इस जिहड़ी साडी ये सानूं शर्त दित्ती हुई है, जो सानूं ये रकम दित्ती हुई है, इहदा कोई भी हल नहीं है। थैंक यू।